Hi guys. So in this video we'll be learning about recursion. So I chose this question which is a very easy question from GFG to explain you how recursion works. So recursion is very essential. It's a basic concept for moving into complex data structures. तो अगर आपको कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर जैसे डीपी, आपको ग्राफ, आपको बाइंड रिसर्च ट्रीज ये सब सीखना है तो रिकर्जन आपका स्ट्रांग होना चाहिए. So we will be doing this problem natural sum. It's a very easy problem and trust me guys, अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी रिकर्जन में. धीरे धीरे मैं बहुत वीडियो डालूंगा. You will find no difficulty in recursive questions that will be thrown at you in maybe competitions you are participating in some, you know, uh, in deep, even if you want to learn DP is very difficult sometimes. If your recursion concepts are not clear, it will be impossible for you. So recursion should be your key. So without wasting any time, let's try to solve this question. So as you can see, this is a natural sum and it is saying given n, find s such that sum of first s natural numbers is n. So whatever you are doing, any any time you encounter a question, new question, you always have to come read this and then immediately go to the examples to understand and make sense of this text with these examples, right? That should be your first goal. You should be absolutely clear कि भाई क्या दिया है क्वेश्चन में. ठीक है. So now let's see, n is 10. The function will have n which will be 10 and output should be 4, right? So first 4 natural number, as you can see, it will be giving me 10. So I have to return 4 here. And in this second example, you can see n is 17 and it is unachievable. So it is giving me -1. So therefore, like if you go by this method, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, it will basically not be equal to, never be equal to 17. That is why we have to return a -1 in such cases. Okay, so now what you have to forget about this is a GFG functionality. Don't look at this. You have to guess this based on the constraints. Every time you are giving a new question in the competitions or anything you are taking part in, आपको ये कंस्ट्रेंट से ही दिमाग लगाना है कि कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको अलाउड रहेगी जो एक्सेप्टेबल हो जाएगी आपके क्वेश्चन के लिए. ठीक है. तो इन दिस क्वेश्चन देखो यहाँ पे 10 टू पावर 9 दिया है. इट इज गिवन 10 टू पावर 9. सो n solution, a for loop, basic for loop for every n, right? It will not work. A recursion question in which a recursion as well in which is taking n time will not work because 10 to the power 9 is exceeding 10 to the power 8. 10 to the power 8 which we consider as basically 2 to the power 32 equal to 2 to the power 32, which is the our space allocated for the time complexities. So that will not be acceptable because it is exceeding that. It will break for those cases. So I think below that, what is below n? With below of n is log n, right? So recursion will take log n. So we can use recursion here. Let's go. Let's see what we can do here. So what I'm thinking by seeing this is I want to start from 1, right? So recursion is what? Recursion is something where I'm calling a function inside the function. The same function I'm calling inside my function, right? So how does it work? It works like this. So suppose I will return here something with this find function only. Find, and I will give n minus 1. So what do you think will happen here? It will run infinitely. How? How did I got that? Simply if I show you, and if suppose we give an example, always consider examples. Don't be using variables in your head. Just always put some constant value in that and try to understand recursion. How will it pay? Use small constants. That would be my advice. तो कैसे होगा अगर मैंने n 5 दे दिया यहाँ पे तो रिटर्न 4 कर रहा है वो, है ना. n-1 मतलब 5 - 1 4 हो गया.
तो वो क्या करेगा, यहाँ पे 5 जो है, 5 का एग्जीक्यूशन वहीं स्टॉप हो जाएगा। जैसे ही फाइंड 4 कॉल हुआ आपका, वहाँ पे वहाँ तक कोड रुक गया है 5 का। तो 5 जो है बेसिकली एक रिकर्जन स्टैक स्पेस होती है, अपनी जो मेमोरी होती है ना, उसमें एक ये फंक्शंस को होल्ड करने के लिए एक स्टैक स्पेस होती है। तो वो उसमें हमारा फाइंड 5 चला गया, ठीक है, वहाँ चला जाता है। और फाइंड 4 अब कंप्यूटर एग्जीक्यूट करेगा, और 4 जब वो एग्जीक्यूट कर लेगा तो वो 5 को पॉप आउट करेगा उस स्टैक से, और अब 5 का बचा हुआ जो भी है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा। तो कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे जैसे सपोज कुछ कोड लिखा था, और इसके बाद भी, इस फाइंड के बाद भी कुछ कोड लिखा है, ठीक है। तो क्या होगा, फाइंड 5, पहले तो ये सब एग्जीक्यूट हो जाएगा 5 का, और यहाँ पे फाइंड 4 जब कॉल हुआ तो उसके नीचे वाला सब हॉल्ट हो गया है फाइंड 5 के लिए। अब फाइंड 4 जब तक एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं दे देगा, हमने यहाँ रिटर्न लगा रखा है, रिटर्न की मतलब अगर नहीं है यहाँ पे, अब इमेजिन करो रिटर्न के पे तो ये फाइल खत्म ही हो जाता है ना क्वेश्चन, तो नीचे नहीं जाएगा। तो इमेजिन करो रिटर्न नहीं है, तो फाइंड 4 जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा तो हमारी नीचे की लाइन फाइंड 5 की एग्जीक्यूट नहीं होंगी। अब फाइंड 4 में भी ये सब वैल्यूज फिर से एग्जीक्यूट होंगी, और फाइंड 3 कॉल हो जाएगा, फाइंड 4 की ये वैल्यूज रुक जाएंगी वहीं पे। अब फाइंड 2 आया उसका एग्जीक्यूट, फाइंड 1 आया वो एग्जीक्यूट, राइट। तो अभी ये सब एग्जीक्यूट होगा तो क्या हो रहा है, ये 0, -1, -2, -3 तो एग्जीक्यूट होता जा रहा है। तो ऐसे तो इनफाइनाइट स्टैक में चला जाएगा, 5 4 3 सब कुछ फाइंड का चला जाएगा, स्टैक में भर जाएगा और स्टैक फुल हो जाएगा। तो आपको ये बेसिकली, आप अगर देखो मैं इसको कंपाइल करूंगा तो ये यहाँ पे रन टाइम एरर आ जाएगा, स्टैक ओवरफ्लो, स्टैक में बहुत सारे फाइंड भर गए हैं। तो अभी क्या हुआ है यहाँ पे, आप देखो, यहाँ पे कुछ तो एरर है, एक्सपेक्टेड प्राइमरी टोकन कुछ गड़बड़ कर दिया है मैंने। ये देखिए, ये नहीं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था। तो अभी यहाँ पे देखो, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा, स्टैक ओवरफ्लो का रन टाइम एरर आएगा। देखिए सेगमेंटेशन फॉल्ट यही होता है, टम्प कोर, वो सेगमेंटेशन फॉल्ट बेसिकली आपका वो स्टैक स्पेस ओवरफ्लो हो गया है, ठीक है। तो ये C++ की चीज़ें हैं, यू शुड नो। अभी वी, ये तो आपने समझ लिया, ठीक है, मैंने आपको रिवर्जन बहुत स्मॉल वे में समझा दिया। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे गिवन एक एंड है, अपने को ये समझ में आ गया था कि ये 10 तक जाना है। जब हमारा सम जो है ये 10 के इक्वल हो जाएगा, तो हम लोग, देखो रिकर्जन का जो इनफाइनाइट वाला मैंने भी आपको केस दिखाया था, इसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली एक बेस केस देते हैं कि भाई हम डेप्थ में गए किसी फंक्शन की, कि फाइंड 5 फाइंड 4 फाइंड 3 होता जा रहा है। अब फाइंड 1 हुआ सपोज, तो वहाँ से कुछ रिटर्न कर दें, ठीक है। मैंने सपोज 0 रिटर्न कर दिया, है ना। अब वो 0 रिटर्न हो गया ना, अब वो वापस आएगा फाइंड 1 पे, फाइंड 1 पे वो बचा हुआ चीज़ें जो भी हैं उस फंक्शन की वो एग्जीक्यूट करेगा। तो वहाँ पे हमें रिकर्जन को कुछ इस तरह से खिलाना है कि ये क्वेश्चन एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने एक ऐसा फंक्शन बना लूँगा इंट फंक करके, बहुत ही बेकार नाम दूंगा मैं, क्योंकि मेरे को आपको बस समझाना है, मेरे को यहाँ पे कुछ और नहीं करना है। तो इसमें मैं एक इंडेक्स वैल्यू दूंगा, उसमें फिर मैं एक ना एन दे दूंगा, और एक सम की वैल्यू मैं वहाँ पे मेंटेन करूँगा। और मैंने यहाँ पे इनिशियल उसकी 1 एन और 0 दे दिया है, ठीक है। अब मैं पहले बेस केस लिखना चाहूँगा, ठीक है। बेस केस अपन बाद में डिसाइड करेंगे, अपन पहले यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं कि करना क्या है। तो मैंने एक सम बनाया, ठीक है। नहीं ऐसे नहीं, मैं क्या करूँगा, सम की बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे एक फंक्शन रिटर्न करूँगा जिसमें मैं इंडेक्स को +1 कर दूँगा, ठीक है, और एन दूंगा, और एक सम में इंडेक्स को ऐड कर दूँगा। अब ये मैंने क्या किया, देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैं क्या चाह रहा था मैंने आपको बताया था, मैं धीरे धीरे जैसे फॉर लूप में एक एक करके वैल्यू नहीं बढ़ाते हैं, मैं स्टार्ट 1 से करूँगा और मैं एक एक वैल्यू बढ़ाता जाऊँगा। फॉर लूप में मैं ऐसा कर सकता हूँ i++ से, मैंने यहाँ पे रिकर्जन से वही काम कर दिया है। मैंने पहले स्टार्टिंग देखो यहाँ पे 1 दे दिया है, ठीक है। और वो इंडेक्स जो है, मैं ये रिकर्सिव कॉल में हर बार इंडेक्स +1 करे जा रहा हूँ। तो 2 हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अभी मुझे इसको कुछ ऐसा करके इस तरह से मतलब खिलाना है कि ये 10 पे, जैसे ये जब वैल्यू अगर 10 हो जाए, इसका सम जो है 10 हो जाए, तो मैं चाहता हूँ कि ये वहीं पे रिटर्न कर दे मुझे ये इंडेक्स। 4 पे थे ना हम लोग, 4 पे ये 10 हुआ, तो हम ये चाह रहे हैं ये 4 रिटर्न हो जाए, तो ये इंडेक्स की वैल्यू है, ठीक है।
1+2 1 2 हो गया, 2+1 3 हो गया, 3+1 4 हो गया। तो हम ये कहाँ कर रहे हैं, इंडेक्स पे कर रहे हैं ना, इंडेक्स +1। तो इंडेक्स की वैल्यू जब 4 होगी तो मेरा सम जो है 10 हो जाए, ठीक है। तो हम वो वहाँ पे रिटर्न करना चाहेंगे, इफ इंडेक्स, इंडेक्स, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, सम पे, सम इक्वल टू एन, एन जो था, जो मेरा ये 10 है, ये जब मेरा n के इक्वल हो जाएगा, n क्या है यहाँ पे, n दिया हुआ है 10, ठीक है। अब जो मेरा सम ये डायनेमिकली कैलकुलेट होता जा रहा है, 1 2 3 हो गया, 3 के बाद हमने यहाँ 3 ऐड किया, 6 हो गया, 6 4 ऐड किया, तो ये हर उसका हर लेवल का ये सम डायनेमिक है। जब ये 10 हो जाएगा, सम इक्वल टू n, जो भी हमें डायनेमिकली दिया, मतलब इनपुट में दिया रखा है n, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, वो जो दिया है, तब मैं रिटर्न करना चाहूँगा इंडेक्स। बहुत सिंपल। आप देखो इंडेक्स की वैल्यू 4 है, अगर 3 थी उसमें सम n के बराबर नहीं हुआ तो हमने वो रिटर्न नहीं किया, हमने वहाँ पे इंडेक्स में +1 कर दिया है, 4 कर दिया है और सम को बढ़ा दिया। सम मेरा यहाँ पे 6 हो गया होगा, 3+2+1 6 हो गया होगा। और 6 में जब ये 4 ऐड होगा, ठीक है, इंडेक्स +1 किया हमने तो ये 5 हो गया, और ये यहाँ पे 4 जब ऐड हुआ तो ये 10 हुआ। तो अभी 5 है यहाँ पे, तो मैं इंडेक्स रिटर्न नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे इंडेक्स -1 कर दूंगा रिटर्न, क्योंकि ये एक आगे हो गया ना, 4 की जगह 5 हो गया है। तो मैं ये काम करूँगा। और सम को, अगर मैं ये सम जो है मेरा, एक और केस लगाना पड़ेगा कि अगर ये ग्रेटर देन n हो गया तो मैं सिंपली -1 रिटर्न कर दूंगा। मतलब कि मेरा ये सम, अगर ये किसी भी केस में, ये जो हम डायनेमिकली कैलकुलेट कर रहे हैं, ये n से ऊपर हो गया और n कभी आया ही नहीं मेरा बीच में, समझ रहे हो आप, 10 कभी आया ही नहीं, 10 आया होता तो हम लोग यहाँ पे इंडेक्स -1 रिटर्न कर देते, कुछ वैल्यू देते थे, है ना। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो आया ही नहीं और वो 11 हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब वो अचीवेबल भी नहीं है, तो मैं -1 रिटर्न कर दूंगा। और वो -1 जो है वो यहाँ की लास्ट वैल्यू में आएगा, वो ऊपर की सारी वैल्यूज में -1 आ जाएगा, तो लास्ट में यहाँ पे भी -1 आ जाएगा। आप समझ रहे हो, बैक जब हम लोग ऊपर जाएंगे इन रिकर्जन में, ये सबसे 4 तक पहुँचे, 4 के बाद हम बेसिकली 3 पे जाएंगे, मतलब वापस जब आएंगे 4 पहुँचने के बाद, अगर सपोज 4 में मेरे को ये 10 की इक्वल नहीं हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे -1 रिटर्न कर दिया। अब मैं वापस जाऊँगा 3 पे, तो वहाँ पे भी ये फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे तो -1 ही आ रही है इससे, एक आगे वाली वैल्यू से, तो ये -1 ही रिटर्न कर देगी 3 से। और फिर 2 के लिए भी -1, 1 के लिए भी -1 रिटर्न कर देगी, तो मेरे फाइनल इसमें -1 आ जाएगा, है ना। तो अगर ये इक्वल है तो मेरे को वही वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, है ना। सम इक्वल टू n है तो इंडेक्स -1 की वैल्यू मेरे को यूनिवर्सली हर उसमें पीछे पीछे जाते जाते लास्ट में भी मेरे को वो मिल जाएगी, तो मतलब 4 मेरे को मिल जाएगा, है ना। तो अभी अपन इसको रन करके देख लेते हैं। देखो 4 वैल्यू आई है, रनेबल है, और मैं इसको सबमिट करके देखता हूँ क्या सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं। देखो सारे, कितने सारे टेस्ट केस थे, सब पास हो गए, ठीक है। तो आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा, मेरा पहला वीडियो है। लेट्स सी कैसा रिस्पॉन्स आता है तुम लोग का।